Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। तूफानों की हस्ती है क्या, जब जिंदा चट्टान पे हो आँखें। अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए। अंगूर की बेल से पैवस्ता हर डाली सावन हो जाए। कुम्हार बने, कुम्हार बने जिस बर्तन का, वो बर्तन दर्पण हो जाए। यीशु 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 यीशु। हालेलुया। थैंक यू जीसस। सबको जय मसीह की। आइए हम सब आंखें बंद करें, प्रार्थना करें। कुछ लोगों के लिए इंटरसीड करेंगे जिनकी प्रार्थना विनतियाँ आई हैं। हालेलुया। Lord Jesus, we come before your throne of grace, Lord. We come before you through the shed blood on the cross. Lord Jesus, only through your blood we can access your presence. यीशु मसीह, केवल तेरे लहू के द्वारा हम पिता के पास पहुंचते हैं। तेरे लहू की हम जय जयकार करते हैं। तेरे लहू की कुदरत को खोलते हैं अपने ऊपर। तेरे लहू के साये के नीचे आते हैं। तेरे जलाली खून के साये के नीचे आते हैं यीशु मसीह। तेरे लहू की कुदरत के नीचे आते हैं। इसी समय प्रभु मैं तेरा लहू छिड़कता हूँ इन तमाम प्रार्थना विनतियों पे। प्रभु मैं भाई कुंदन शाह को आपके हाथ में देता हूँ। प्रभु अपने इस बंदे के जीवन को कुंदन सोने की तरह बनाना खुदावन। खालिस पवित्र आत्मा की आग में से तपा के इसे खालिस करना प्रभु। प्रभु मैं जोगिंदर कौर की हीलिंग के लिए प्रार्थना करता हूँ। साबी सुरजीत के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु तेरा हाथ जोगिंदर कौर को छुए खुदावन। प्रभु मैं भाई साहिल के लिए, उसके पिता के लिए जो पाकिस्तान में प्रार्थना करता हूँ। तेरा खून, तेरा लहू प्रभु मैं छिड़कता हूँ। तेरी चंगाई के रूह को खोलता हूँ खुदावन। मैं भाई ललित मेहरा के लिए प्रार्थना करता हूँ। उसके ससुर के लिए प्रभु जिसे कोविड हुआ, कोविड-19, मैं प्रार्थना करता हूँ आपका हाथ उसे चंगा करे। मैं आपका लहू उसके ऊपर छिड़क देता हूँ खुदावन। प्रभु वो अपना जीवन तेरी ओर पलटे, तेरी ओर मुड़े खुदावन। टच दैट मैन लॉर्ड, आई प्रे बाय द पावर ऑफ योर होली स्पिरिट। फादर, आई प्रे फॉर नीलम वैली एंड हर सन नरेश। आई कमेंड हिम इनटू योर होली हैंड्स। आई प्रे दैट योर स्पिरिट विल मूव। I pray, Lord, that the healing unction will minister unto him. Lord, deploy the angels that usher in healing even now, as I pray in the name of Jesus. Let this miracle healing bring honor to your name. Hallelujah. Father, I pray for Sylvanus. I pray for her healing. Lord, I pray that resurrection power, resurrection anointing will flow in her mortal body in the name of Jesus. I pray for Agnes Lal and brother Vinod Lal and their daughter Silky. I cover them under the blood of the Lamb. Father, I pray in the name of Jesus for Taljinder Kaur, Lord, for her healing. May you touch Taljinder Kaur by the anointing of your Spirit, Lord. Touch her. Touch her husband Kulwant Singh, Lord. Let his kidneys be healed, Lord. Heal that man's kidneys in the mighty name of Jesus of Nazareth. Lord, I pray for all other prayer requests that I may have forgotten, Lord, but you haven't.
May you minister to those people. May you meet them at the point of their need, Lord. I pray for Minu Sood, for her family, for your anointing, for your blessing and for your hand. I pray for Brother Malkiyat Gill and his children and his family. Lord, I pray for Anju Masih in Britain. May you bless her. May you anoint your daughter. May you put your hand upon her, your right hand, Lord God. And I pray for Devinder Singh, Lord, from Jammu and Kashmir. May you bless him. Lord, I also pray for Brother J. Lauren Norris from the US who just joined us. I pray you bless him, bless his precious household. Lord, may your precious anointing rest upon him in the name of Jesus. I pray for Brother Anil, my brother who is in Britain, and his 2 daughters and his wife, that they grow in spirit, Lord, that they make their roots deeper in the rock of the ages, the King of glory, the Lord Jesus of Nazareth. Father, I pray for Richa Masih and her family, her father and mother. Touch them, Lord. Bless them in the mighty name of Jesus. For Ruisha, her sister, and Sachin Verma, I commend them under the blood of the Lamb. Father, I pray for Bhai Ratan, Lord. He is in the hospital because there is an accident that happened. Lord, I pray that you will save the life of Brother Ratan, Lord. Lord, that your angels stand right by the side of the doctors, Lord, that you monitor the hands of the doctors, that you give them wisdom, Lord, that you give them counsel in the mighty name of Jesus, and protect, Lord, Brother Ratan's life in the name of Jesus. I cover him under the blood. I pray for Brother Raman Khan and his mother and his wife and his daughters, Lord. I bless this brother. He's an asset for your kingdom. Bless his family. Bless his 2 brothers, Lord. Heal, Lord, his family in the mighty name of Jesus of Nazareth. Father, I also remember his cousin who is in Hyderabad and his whole family, Lord. May you dispatch your angels, Lord. May you draw them to you in the name of Jesus. Hallelujah. Heavenly Father, I pray for Prabdeep and his spouse and his family and his household. Bless them in the mighty name of Jesus. Lord, bless Pooja Bisht. I pray for her. I cover her under the blood. I speak the anointing of the Lamb of the Most High God. And I bless Jasveer Singh Surinder. May your hand be upon him, Father. In the mighty name of Jesus. Bless Brother Emmanuel Sahota, Lord. Hallelujah. Bless him, Lord. I pray in the name of Jesus of Nazareth. Father, I pray for Sunita Kaur and her family. Lord, particularly for Raj, I cover her under the blood, Lord. Her whole household. I release the spirit of salvation over them. Darshan Singh from Jalandhar and his household, his children, Father, I cover them under the blood of the precious Lamb of the Most High God. Hallelujah. I bless Brother Sandeep, Pastor Sandeep and his household, particularly his father, Lord, that your hand be upon him. I pray for Paramjeet and Devinder Kullar, Lord, and their children. Lord, I speak health, healing and longevity, life over them in the mighty name of Jesus. I pray for Reji Varghese, who is online with us. Father, bless everybody. Even, Lord, the prayer request of Sister Millie Sagal and her brother who is in Britain, Millie Sagal who is in Australia, her family, her parents, Father, I cover them all under the blood of the Lamb. Hallelujah. Thank you, Lord. We bless you. We praise you, Lord. Hallelujah. तेरा धन्यवाद. तेरी महिमा करते हैं. तेरे नाम को हम जलाल देते हैं. तेरे वचन में से जब हम सीखते हैं, खुदावन तेरा आत्मा हमारे साथ बातें करे. यीशु मसीह के जलाली नाम में. आमीन. हालेलुया. आज एक बहुत ही ब्लेसड सब्जेक्ट जो मैं शुरू कर रहा हूँ. दैट्स माई मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट. You hear this, you see this at the backdrop, Israel. I love to talk about Israel. I can go for hours and hours and hours and hours without even having a break, and I can just talk about Israel and the glorious God of Israel. Hallelujah. So today we are starting a subject, Israel, the world and the end times. Hallelujah. Israel, दुनिया और अंत के समय. इस कनेक्शन को हम परमेश्वर के कलाम में से सीखेंगे और मैं यीशु मसीह के नाम में आपको आश्वासन देता हूँ, ये शिक्षा आपके जीवन को बदलेगी. मुझे मालूम है जितनी भी शिक्षाएं हमने ली हैं, मुझे ऑलमोस्ट 100 डेज़ हो गए हैं आपको सिखाते हुए, और 100 डेज़ में 200 आवर की टीचिंग आपने ली है. और आप ध्यान से देखें, ये
3 या 4 साल के बाइबल कॉलेज का करिकुलम है पूरा, जो पवित्र आत्मा ने हमें सिखाया, और अद्भुत अद्वितीय अनोखी बातें प्रभु ने हमें अपने वचन में से सिखाई। पवित्र आत्मा का हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, परमेश्वर के कलाम को अगर आप गौर से पढ़ेंगे, वचन बताता है, द अर्थ द लॉर्ड गेव अनटू द मैन टू लिव। पृथ्वी परमेश्वर ने मनुष्य को दे दी। मैन इज द मैनेजर ऑफ द अर्थ। मैन डजंट possess the earth, man doesn't own the earth, God owns the earth, but man is a caretaker. The Lord God dwells in heaven, the earth he gave to the mankind. And if we look into the word of the Lord, after God gave the earth into the custody of Adam, God barely intervenes into the affairs of the earth, unless he has to. तो हम देखते हैं परमेश्वर ने कब इंटरवीन किया? अदन के बाग में, जब हवा ने उस फल को तोड़ के खाया। फिर हम देखते हैं पृथ्वी पे मनुष्य बढ़ने लगे, पाप बढ़ने लगा। फिर परमेश्वर ने देखा कि हाइब्रिड आ गए। दोज वॉचर्स दे केम डाउन, दे कोहैबिटेड विद वुमेन, दे प्रोड्यूस्ड ए हाइब्रिड रेस ऑफ नफलीम्स। और फिर जो नफलीम थे उनमें से गिबरीम निकले। फिर उन्होंने एनिमल के साथ, सी क्रीचर के साथ, बर्ड्स ऑफ द एयर के साथ, इसीलिए वो बड़े बड़े डायनासोर पैदा हुए, बड़े बड़े सी क्रीचर, बड़े बड़े ड्रैगन पैदा हुए, क्योंकि वो हाइब्रिड थे। तो परमेश्वर ने फिर इंटरवीन किया, एंड गॉड सेंट फ्लड। दैट्स द सेकेंड टाइम गॉड इंटरवीन। उसके बाद फिर पृथ्वी पे मनुष्य क्या करने लगे? निम्रोद नाम के व्यक्ति ने फिर रिवाइव किया वॉचर की टीचिंग को, और उसने अपने आप को हाइब्रिड बना लिया। जहाँ पे लिखा है निम्रोड began to be a mighty hunter before the Lord. The original Hebrew text says that Nimrod made himself sort of a hybrid. He genetically mutated himself. उसने अपने जीन्स चेंज कर लिए, और वो बुर्ज बना रहा था। वो बुर्ज एक होली स्पेस था, so that demons can descend, gods can descend, लेकिन God of heaven and the earth descended, वो उतर आया। और उसने लैंग्वेजेस को कंफ्यूज किया, क्योंकि परमेश्वर ने मनुष्य से कहा था पृथ्वी को भर दो। तो जो निम्रोद बुर्ज बना रहा था, उस समय लोग कहते थे हमें पृथ्वी पे बिखरना ना पड़े। वो परमेश्वर के पर्पस के विरोध में खड़े थे। एक जगह इकट्ठा रहना चाहते थे, अपना नगर बनाना चाहते थे, गुम्मट बनाना चाहते थे, अपने लिए नाम करना चाहते थे, और पृथ्वी को भरना नहीं चाहते थे। तो परमेश्वर ने इंटरवीन किया सेकंड टाइम, थर्ड टाइम। तो हम देखते हैं, अगर आप पढ़ेंगे 32 चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी वर्स नंबर 8 एंड 14 चैप्टर ऑफ ड्यूटरॉनमी, आपको ओरिजिनल हिब्रू टेक्स्ट में मिलेगा। 32 ड्यूटरॉनमी वर्स नंबर 8 कहती है, व्हेन गॉड ऑलमाइटी, व्हेन गॉड ऑफ इजराइल, ही डिवाइडेड द इनहेरिटेंस, उसने पृथ्वी की अलॉटमेंट की, लैंड अलॉटमेंट की। 70 नेशंस हैं उस समय, जेनेसिस चैप्टर 10 में और जेनेसिस चैप्टर 11 में। उन 70 जेनेटिक पूल्स को परमेश्वर ने पृथ्वी की अलग अलग एरिया बांट दिए, और वहाँ पे लिखा है अकॉर्डिंग टू द सन्स ऑफ इजराइल लिखा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, उस समय इजराइल तो है ही नहीं, लेकिन ओरिजिनल हिब्रू वर्ड है अकॉर्डिंग टू बेनाई एलोहीम। बेनाई एलोहीम ये कौन थे? ये वो वॉचर थे, ये डिवाइन कौंसल थी, 70 दूतों की डिवाइन कौंसल जो यहोवा के साथ आई जब यहोवा परमेश्वर उस बुर्ज को देखने आया। तो यहोवा परमेश्वर ने उन 70 वॉचर के हवाले दुनिया कर दी। 70 जेनेटिक पूल केम अंडर 70 वॉचर्स, 70 एंजल्स के नीचे। इसलिए साम 82 जब आप पढ़ते हैं, साम 82 के अंदर यहोवा परमेश्वर कोर्ट लगा रहा है, सुप्रीम कोर्ट, और उस कोर्ट के अंदर यहोवा परमेश्वर कंडेम कर रहा है उन 70 वॉचर को, क्योंकि उन्होंने यहोवा के जस्टिस को परवर्ट किया है। और परमेश्वर वहाँ पे क्या कहता है? परमेश्वर कहता है, यू आर बेनाई एलोहीम बट यू शैल पेरिश लाइक मैन। अगेन द सेम टर्म इज यूज्ड। तुम यहोवा के पुत्र हो लेकिन मनुष्यों की तरह मरोगे। गॉड विल जज दोज 70 वॉचर्स बिकॉज ऑफ देयर करप्शन। वो 70 वॉचर भी करप्ट हुए। ये पृथ्वी के ऊपर जो रूल कर रहे हैं, किंग्स हैं, पावर्स, डोमिनियंस,
अथॉरिटीज़, प्रिंसिपैलिटीज़ एंड स्पिरिचुअल विकेडनेस। ये कौन है? ये वो 70 वॉचर्स हैं। दे हैव अलायंस विद दोज फॉलन एंजल्स, जिन्हें परमेश्वर, जिसे शैतान ने अपनी पूंछ के साथ पृथ्वी पे गिराया है, यहोवा ने जिनको निकाला है। ये सब एक किंगडम है जो परमेश्वर के विरोध में है। आपको मालूम, दानियल जब प्रार्थना करता है, किंग ऑफ पर्शिया स्टॉप्ड हिम। उनके पास एयर वेव की ज्यूरिसडिक्शन है। वचन में लिखा है द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर, इफिसियों की पत्री में, द प्रिंस ऑफ द पावर ऑफ द एयर। तो वचन बताता है 11th चैप्टर में, अगर आप पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 1 अध्याय में, प्रेरित पौलुस वही बात करता है 19 वर्स ऑनवर्ड, रोमन्स चैप्टर नंबर 1 वर्स नंबर 19 ऑनवर्ड्स, हाउ गॉड gave them to a reprobate mind. They knew God, but they did not honor God. Their imaginations became vain, and they became pervert, and they began to do all kind of wicked sexual debauchery and all kind of evil sexual sins. Therefore God abandoned them. परमेश्वर ने त्याग दिया। परमेश्वर ने उनको उनके रेप्रोबेट माइंड के हवाले कर दिया कि वो गंदमंद करें, बदकारी करें, अपने आप को पवित्र करें। यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी को त्यागा 11th चैप्टर में। 70 जो नेशंस हैं 10th चैप्टर में, उनको त्याग दिया और 70 वॉचर उनके रीजेंट बन गए हैं। तब 12th चैप्टर में यहोवा परमेश्वर क्या करता है? तारा के बेटे इब्राहिम को आवाज़ लगाता है। प्रेरितों के काम 7 अध्याय के 2 वचन में लिखा है कि यीशु मसीह इब्राहिम को दर्शन देता है। वहाँ पे लिखा है व्हेन अ फादर एब्राहम ड्वेल्ट इन मेसोपोटामिया, कसदियों के देश में रहता था, गॉड ऑफ ग्लोरी अपीयर्ड अनटू हिम। यहोवा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह ने, जलाली यीशु ने उसे अपना दर्शन दिया। और आपको मालूम, यीशु मसीह कहते हैं, योना रचित सुसमाचार 8 अध्याय के आखिरी आयतों को पढ़ोगे 56 में, यीशु मसीह कहते हैं तुम्हारा पिता इब्राहिम मुझे देखना चाहता था और उसने मेरे दिन को देखा। तो वो कहते हैं तेरी उम्र तो 50 साल भी नहीं है, इब्राहिम को मरे हुए तो 2000 साल हो गए हैं। तो यीशु मसीह, मैंने आपको बताया था कौन सा वर्ड यूज़ करता है, हालेलुया, आइगो में आए, योड है वाव है, हैया अशर हैया, मैं जो हूँ सो हूँ, हालेलुया। तो यीशु मसीह इब्राहिम को दर्शन देता है और यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह, यहोवा परमेश्वर इब्राहिम में से कौम निकालता है। इब्राहिम से इसहाक, इसहाक से याकूब, याकूब हील कैचर है, हमने अध्ययन किया उसका। लेकिन वो क्या करता है, यीशु मसीह के साथ उसका एनकाउंटर होता है इब्राहिम का, और यीशु मसीह उसकी हिप को छूता है, उसका जीवन बदल देता है और यीशु मसीह उसे नया नाम देता है, याशरेल, इज़राइल, हालेलुया, the one who has power with God, the one who prevailed, the one who is a prince with God। और इज़राइल मिस्र में चला जाता है, यूसुफ मिस्र का प्राइम मिनिस्टर बनता है, इज़राइल मिस्र में चला जाता है और यहोवा परमेश्वर मिस्र में से इज़राइल को निकाल के लाता है। और जब परमेश्वर इज़राइल को मिस्र में से निकाल के लाता है, परमेश्वर अपने दास मूसा से बहुत अद्भुत आज्ञाएं देता है। पहली 5 पुस्तकें बाइबल की पढ़िए, बार बार पढ़िए। फर्स्ट 5 बुक्स, जिसे हम ग्रीक में पेंटाट्यूक कहते हैं, हिब्रू में टोरा कहते हैं, इसके अंदर घुस जाइए आप, पूरी बाइबल आप पे खुलेगी, हालेलुया। परमेश्वर उनको क्या कहता है इस्राएलियों को जब वो कनान में जाते हैं? मैंने सारी ये टीचिंग आपको दी पिछले 2 महीने में। जो कनान देश है, वायदे की धरती है, वहाँ पे हाइब्रिड हैं, नफलीम हैं, 7 प्रजातियाँ हैं नफलीमों की, और 7 एंट्री थी अंदर घुसने के लिए। 7 एंट्री के ऊपर हाइब्रिड बैठे हैं। सबसे खतरनाक एरिया था यरीहो। परमेश्वर सबसे खतरनाक इलाके में उन्हें लेकर आता है, और मैंने बताया यीशु मसीह खुद आता लड़ने के लिए, और उसने तलवार निकाली है, आत्मा की 2 धारी, और यरीहो को हराने के लिए कोई तलवार उठाई नहीं गई। यरीहो की दीवारें गिर गई, फिर उनको ध्वस्त कर दिया यहोवा परमेश्वर ने। यहोवा परमेश्वर ने कहा था मैं तुम्हारे संग रहूँगा और उन सब हाइब्रिड को,
शैतानी बीज जो है, नफलीम्स जो हैं, जो सैटेनिक ब्लड लाइन है, उन्हें मैं तुम्हारे बीच में से निकालूंगा। यहोवा, मैंने आपको बताया, उनको वैली में ले जाके लड़ाई का रण कौशल सिखाना चाहता था, लेकिन इस्राएल वैली में लड़ना नहीं चाहता था, पहाड़ पे बसना चाहता था इस्राएल। और अगर आप वचन को पढ़ेंगे, दान का गोत्र लड़ाई किए बगैर पहाड़ पे चढ़ गया और बहुत खतरनाक मूर्ति पूजा का शिकार हुआ नॉर्दर्न किंगडम इजराइल। तो प्रभु ने उनसे कहा था हाइब्रिड को मारना है, लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने, वचन को अगर आप पढ़ेंगे, इन्होंने ये दे इंटर मैरिड विद देम, इन्होंने अन्य जाति के लोगों के साथ शादियां की। हालेलुया। प्रभु ने क्या कहा था कि इनमें शादी मत करना। इफ़ यू डू इट दे विल बी लाइक थॉर्न्स इन योर आईज, इन योर साइड्स, कांटों की तरह होंगे। और प्रभु ने क्या कहा था? प्रभु ने कहा था तुम उनमें मिक्स होगे तो तुम उनके देवी देवताओं की उपासना करोगे, उनके देवी देवताओं को पूजोगे। हालेलुया। और प्रभु ने क्या कहा था? मैंने आपको बताया, 28 अध्याय पढ़िएगा, लेवी व्यवस्था विवरण, क्लासिक चैप्टर ऑफ ब्लेसिंग एंड कर्सेस। प्रभु ने कहा था इफ़ यू विल कीप माई कवनेंट, इफ़ यू विल स्टे इन द एग्रीमेंट दैट यू मेड विद मी, आई विल मेक यू nation above all the nations of the earth. You will be crowning masterpiece. You will be the head and not the tail, and all the nations of the earth will bow before you. Your enemies will be scared of you. Peradventure they come against you one way, they shall flee before you 7 ways. अगर वो तुम्हारे खिलाफ आए एक मार्ग से, 7 मार्गों से यहोवा कहता है मैं उन्हें खदेड़ूंगा। लेकिन यहोवा ये भी कहता है, पढ़िएगा 15 से लेकर 68 वचन तक, व्यवस्था विवरण 28 अध्याय, अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें बहुत मारूंगा। ये यहोवा परमेश्वर वचन में कहता है। 25 अध्याय लेवी व्यवस्था पढ़िएगा, गंभीर परिणाम होंगे अगर तुम मेरी आज्ञा नहीं मानोगे। प्रभु अक्सर क्या कहता है उन्हें? प्रभु कहता है आई विल सेंड सोर्ड, फैमिन एंड पेस्टिलेंस। आई विल सेंड सोर्ड, फैमिन एंड पेस्टिलेंस। पेस्टिलेंस के लिए जो वर्ड्स हैं हिब्रू में, मैंने आपको बताया साम 91 की टीचिंग करते हुए 1 महीना पहले, वो सारे वर्ड अन्य जाति के, कनानियों के, हित्तियों के, जबूसियों के और कसदियों के, अकेडियन के देवता हैं। कोई रात को मारने आता है, कोई दोपहर को मारता है, कोई पानियों के बीच में रहता है, कोई हवा में रहता है, कोई चढ़ते सूर्य का देवता है, कोई चांद का देवता है, कोई ऋतुओं का देवता है, कोई फर्टिलिटी का गॉड है, कोई हार्वेस्ट का खुदा है, कोई फॉर्चून का गॉड है, कोई हेल का है, कोई स्टॉर्म का है। तो प्रभु कहता है मैं उन डीमंस को, उन देवताओं को लूज करूंगा, वो तुम्हारे ऊपर आकर सजा लाएंगे। सोर्ड, फैमिन एंड पेस्टिलेंस आएंगे। फिर परमेश्वर एक बड़ी यूनिक बात कहता है, कहता अगर तब भी तुम ना माने, देन आई विल सेंड बीस्ट। तो हिंदी में लिखा जंतु भेजूंगा, जानवर भेजूंगा। तो हिंदी में ट्रांसलेट करने वालों ने इंग्लिश में बीस्ट लिखा है, तो उन्होंने जंतु लिख दिया, जानवर लिख दिया कि जानवर आ जाएंगे, वो मारेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जहाँ बाइबल में बीस्ट वर्ड आता है, बीस्ट से परमेश्वर ये बताता है एक ऐसा डेमोनिक किंगडम, एक डेमोनिक गवर्नमेंट जो आपके ऊपर रूल करेगी, एक डेमोनिक सिस्टम रूल करेगा तुम्हारे ऊपर। परमेश्वर ने कहा मैं ऐसा करप्ट, डेमोनिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक, सोशल और ऐसी ग्लोबलिस्ट पावर खड़ी करूंगा जो तुम्हें मारेंगी। प्रभु कहता है ये होगा बीस्ट सिस्टम। ये ओल्ड टेस्टामेंट से न्यू टेस्टामेंट की आखिरी बुक तक ये लानत है। सारी स्टोरी बाइबल की अगर आप इज़राइल को फोकस में रख के समझेंगे तब आपको समझ आएगी। आपको मालूम एक शैतानी शिक्षा है, रिप्लेसमेंट थियोलॉजी, साउथ में भी है हमारे देश के। ये बाहर से आई है, विदेशी तालीम है। ये रिप्लेसमेंट थियोलॉजी शैतानी थियोलॉजी है, ना सिर्फ फॉल्स टीचिंग है बल्कि शैतानी टीचिंग है। रिप्लेसमेंट थियोलॉजी ये बताती है कि हम जो नए नियम की कलीसियाँ हैं, हमने इज़राइल की जगह ले ली है, इज़राइल ख़त्म हो गया, समाप्त हो गया, हम हैं असली इज़राइल, हम स्पिरिचुअल इज़राइल हैं। ये टीचिंग ना सिर्फ फॉल्स है बल्कि हेरेटिकल, ब्लास्फेमस और सैटेनिक टीचिंग है, शैतानी तालीम है ये। इससे दूर रहिए, बच के रहिए।
यहोवा परमेश्वर ने हम जो जंगली जैतून थे, हमें असली जैतून की कुछ शाखाएं काट दी उसने अविश्वास के कारण, और हम जो जंगली थे हमें बीच में रोपा है। हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब रूपी इज़राइल के 12 गोत्रों रूपी उस वृक्ष के अंदर रोपे गए हैं। हम इब्राहिम, इसहाक, याकूब की बरकत के पात्र बने हैं परमेश्वर के अनुग्रह से। हमने इज़राइल को रिप्लेस नहीं किया। इज़राइल इज़ इररिप्लेसेबल। द कवेनेंट दैट गॉड हैज़ विद इज़राइल इज़ एब्सोल्युटली यूनिक एंड इट कैनॉट बी रिवोक्ड। इट्स एन इटर्नल कवेनेंट दैट गॉड मेड विद देम। इज़राइल के साथ यहोवा की वाचा कभी टूटेगी नहीं। इसके ऊपर मैं और आपको सिखाऊंगा अभी आने वाले दिनों में। ये सुपर सेशनिज्म बोलते हैं इसे, ये शैतानी तालीम है। हालेलुया, इससे बचिएगा। इसकी जो इस तालीम को सिखाते हैं, मैंने उनके ऊपर कर्स आते देखे हैं, बहुत गंभीर कर्स, रोग और लानतें आती देखी हैं। तो प्रभु ने इज़राइल से कहा कि बीस्ट सिस्टम तुम्हारे ऊपर रूल करेगा। अब देखिए, इज़राइल ने यहोवा परमेश्वर की, जो परमेश्वर ने कहा कि मेरी आज्ञा ये आज्ञा मत तोड़ना, उन्होंने वही आज्ञाएं तोड़ी। और जो परमेश्वर यहोवा ने कहे थे श्राप तुम्हारे ऊपर आएंगे, उनमें से एक एक श्राप इज़राइल के ऊपर आया। और आपको मालूम, बीस्ट सिस्टम शुरू हो गया उनके ऊपर राज करने के लिए। बेबीलोन बीस्ट है। राजा नबूकदनेस्सर एक बहुत बड़ी प्रतिमा देखता है, मूर्त देखता है, अब खुद ही ख्वाब लेता है। उस मूर्त के अंदर वो खुद ही है। क्या है? सर सोने का है। वो नबूकदनेस्सर है। नबूकदनेस्सर, ये बीस्ट सिस्टम शुरू हो गया। बेबीलोनियन किंगडम लायन है, शेर है। उसके बाद पर्शियन किंगडम बेयर है, रिछ है। उसके बाद ग्रीशियन किंगडम लेपर्ड है, चीता है। और उसके बाद लोहे के दांत वाली एक किंगडम है, लोहे के दांत वाला एक जानवर है, वो है रोम, जो प्रभु यीशु मसीह के समय राज्य कर रहा था। रोमन किंगडम, आयरन टीथ वाला, लोहे की किंगडम थी वो। एंड दैट किंगडम वॉज रूलिंग द टाइम जीसस केम इन ह्यूमन बॉडी। यीशु मसीह जब आए उस समय ये किंगडम रूल कर रही थी। और दानियल ने भविष्यवाणी करके ये कहा कि एक आखिरी किंगडम आएगी जो रोम में से निकलेगी। आखिरी, वो टांगे हैं लोहे की, लेकिन जो पांव उसने देखे वो लोहे के और मिट्टी के, क्ले के हैं। जैसे लोहा और मिट्टी का मिलाप नहीं होता, ऐसे उनका मिलाप नहीं होगा, वो किंगडम टूटेगी। लेकिन वो किंगडम लोहे और मिट्टी की है, इसका अभिप्राय क्या है? वो हाइब्रिड किंगडम है। प्रभु ने कहा जैसे नूह के दिनों में था वैसे मेरी आमद के दिनों में होगा। नूह के दिनों में स्वर्गदूत अपना बीज मनुष्य के अंदर, औरतों के अंदर मिला रहे थे। 2 तरह का बीज मिक्स हो रहा था। वही 2 तरह का बीज फिर मिक्स होगा, जो अभी सब कुछ चल रहा है इस समय, हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो बीस्ट है, बीस्ट अगर आप देखेंगे, इज़राइल को गुलाम बना के ले गया, बाबुल की गुलामी में चले। पहले वो असीरिया की गुलामी में गए। कौन गए? नॉर्दर्न किंगडम। वो 722 बीसी में इज़राइल, नॉर्दर्न किंगडम अशूर की गुलामी में चले गए। और उसके बाद 586 बीसी में सदर्न किंगडम भी चली गई बेबीलोन की गुलामी में। बाबुल के ये जानवर जो हैं, जंतु जो हैं, ये बीस्ट किंगडम इज़राइल को गुलाम बना बना कर ले गए। आपको मालूम इज़राइल क्या करता रहा जाके उन देशों में? क्योंकि इज़राइल ये क्यों गए इन देशों में, मैं फिर अगले सेशन में बताऊंगा। इज़राइल क्या करता था? इज़राइल मुआबियों के देवताओं की पूजा करता था। इज़राइल अमोनियों के देवताओं की पूजा करता था। इज़राइल हित्तियों के देवताओं की पूजा करता था। इज़राइल जबूसियों के देवताओं की पूजा करता था। इज़राइल मिस्रियों के देवताओं की पूजा करता था। इज़राइल कसदियों के देवताओं की पूजा करता था। शेमेश की पूजा करता था, सन गॉड की। मुआबियों का सन गॉड शेमेश है। मोलक जो है वो अमोनियों का सन गॉड है। अशेरा की पूजा करता था। अर्तेमिस, डायना की पूजा करता था। तरह तरह के देवताओं की, दगोन की, अलग फिलिस्तियों के देवताओं की पूजा करता था। ये यहोवा को क्रोध दिलाती थी ये कौम। यहोवा ने इन्हें चुना, यहोवा ने इन्हें अलग किया। आपको मालूम 70 जो कौमें हैं पृथ्वी की, उनके ऊपर वॉचर राज कर रहे हैं। वो डायरेक्ट यहोवा के नीचे नहीं है, वो 70 वॉचर आज भी रूल कर रहे हैं उनके ऊपर। इसीलिए अलग अलग कौम, देश के देवी देवता उनकी प्रार्थनाओं को सुनते और उनका उत्तर देते हैं।
बेशक उनकी अप्रूवल यहोवा देता है, लेकिन इज़राइल डायरेक्ट यहोवा से बातचीत करता है। इज़राइल के ऊपर कोई वॉचर नहीं है, इज़राइल के ऊपर है मिकाएल फरिश्ता। दानियल नबी की पुस्तक से मैं आपको बताऊंगा। इज़राइल डायरेक्ट, थैंक यू जी। कैन यू ऑल सी मी, कैन यू ऑल हियर मी? मुझे मैसेज कर दें प्लीज। हालेलुया, थैंक यू जीसस। तो इसके ऊपर आपको मैं डिटेल दूंगा सारे गॉड। थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया। Bless you, Lord. We bless your holy name. Bless your holy name. Lord, thank you, Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus. Lord Jesus of Nazareth. Thank you, Jesus of Nazareth. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. सभी आ जाइए। धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद हो यीशु मसीह। प्रभु आपका धन्यवाद, 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 धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू। हालेलुया, हालेलुया। इज इट फ्रोजन? कैन यू सी मी, हियर मी? हालेलुया। ओके, यस, थैंक यू, थैंक यू लीना डेविडसन, थैंक यू। हालेलुया। तो अब सुनिए ध्यान से। प्रभु ने कहा कि पनिशमेंट क्या होगी? आई विल सेंड यू इन कैप्टिविटी, आई विल स्कैटर यू ऑल ओवर द वर्ल्ड इफ यू विल नॉट हियर माई वॉइस, इफ यू विल नॉट कीप माई चार्ज, इफ यू विल नॉट वॉक माई स्टैच्यूज, इफ यू विल नॉट कीप माई टोरा। मैं तुम्हें पनिश करूंगा, सजा दूंगा। और हम देखते हैं सजा से पहले परमेश्वर ने क्या किया? सजा से पहले इज़राइल को दो राष्ट्रों में तोड़ दिया, सुलेमान के पापों के कारण। सुलेमान के बहुत अधर्म हैं। वचन को अगर गौर से हम पढ़ेंगे, किसी समय उसी के ऊपर हम टीचिंग करेंगे। मैंने की भी एक टीचिंग उसके ऊपर 1 घंटे की। सुलेमान की बदकारियों और सुलेमान के अपराधों के कारण इज़राइल पे बहुत बड़ी सजाएं आईं। 2 राष्ट्रों में बट गया। जो नॉर्दर्न किंगडम थी वो ज़्यादा करप्ट थी। वहाँ के राजा ने दान के इलाके में, बैतल और दान में 2 सोने के बछड़े बनवा दिए और इज़राइल से कहा कि इन बछड़ों की पूजा करें, क्योंकि यही तुम्हारे देवते हैं जो तुम्हें मिस्र में से छुड़ा कर लाए हैं। और जो उत्तरी इज़राइल था, वहाँ का राजा नहीं चाहता था कि उत्तरी इज़राइल में 10 गोत्र थे, कि वहाँ के लोग सदर्न किंगडम में, दक्षिण इज़राइल में जाएं, क्योंकि जो मंदिर था यहूदियों का, हैकल थी, वो नॉर्थ में नहीं थी, साउथ में थी। वो राजा वहीं चाहता था कि लोग जुड़े रहें, इसलिए वो उन्हें यहोवा के भवन में जाने नहीं देता था। यहोवा के भवन से तोड़ने के लिए उसने सोने के बछड़े बनाए। उत्तरी इस्राएल ने, जिसे हम इस्राएल कहते हैं, दक्षिणी इस्राएल को हम यहूदा कहते हैं। उत्तरी इस्राएल में 10 गोत्र हैं, दक्षिणी इस्राएल में केवल 2 गोत्र हैं, बल्कि 2.5 हैं। तो उत्तरी इज़राइल पे सजा आती है, बड़ी भयंकर सजा आती है, और वो अशूर की गुलामी में चले जाते हैं। असीरियन किंगडम उनको गुलाम बनाकर ले जाती है। आपको मालूम कितनी सजा मिली इन्हें? वचन गौर से पढ़िएगा। 2600 ईयर्स टोटल बनते हैं, 2600 साल ये गुलामी में भटकते रहे। 14 मई 1948 को प्रभु इन्हें वापस लेकर आया, लेकिन फिर भी इनका पूरा श्राप जो टूटा है 2008 में टूटा है। हालेलुया। तो प्रभु यहोवा को बहुत दुख हुआ। आपको मालूम कब दुख हुआ? प्रभु यहोवा इन्हें ले आया
इनकी बदकारियों, इनके अपराध, इनके कुड़कुड़ाने, इनके बुड़बुड़ाने, इनके पीछे भटकने, अन्य जातियों में जाने, देवी देवताओं की उपासना करने के बावजूद यहोवा बार बार इन्हें क्षमा करता था। न्यायी 40 न्यायियों ने एक तरह से राज्य किया में, और ये रोलर कोस्टर की तरह ऐसे ऊपर नीचे रूहानी आलम में जाते रहे। तो प्रभु के वचन में लिखा है, सैमुएल जज बना, सोफटीम हिब्रू वर्ड है। सैमुएल एक धर्मी व्यक्ति है, लेकिन सैमुएल के समय आपको मालूम इज़राइल क्या कहता है? 8 अध्याय पहले सैमुएल में इजरायली सैमुएल से कहते हैं, जैसे अन्य जाति के जो देश हैं हमारे इर्द गिर्द, उनके राजा हैं, हमें भी राजा दो। तो सैमुएल का दिल बहुत टूटता है। आपको मैं पूछना चाहता हूँ, क्या आप मुझे बता सकते हैं इज़राइल का सबसे पहला राजा कौन था? बता सकते हैं आप? Who was the first king of Israel? मुझे मालूम है आप में से कई कह रहे हैं वे शाऊल। मैं बताना चाहता हूँ, इज़राइल का सबसे पहला राजा शाऊल नहीं था। इज़राइल का पहला राजा है यहोवा। यहोवा इज़राइल पे डायरेक्ट राज करना चाहता था। मेरे जीवन पे डायरेक्ट यहोवा राज करना चाहता है। बेशक मैं एक डेमोक्रेसी में रहता हूँ, बट मेरे जीवन पे डायरेक्ट यहोवा का शासन है। मैं यहोवा की सत्ता के नीचे हूँ। मेरे इस हृदय के अंदर प्रभु यीशु मसीह अपना तख्त लगाते हैं। मैं उसका मंदिर हूँ। पहला सैमुएल 8:6 पढ़ लीजिएगा। सैमुएल का दिल दुखी हुआ है, लेकिन यहोवा सैमुएल से कहता, तू क्यों उदास होता है? इन्होंने मुझे त्यागा है। दे डू नॉट वॉन्ट मी देयर किंग एनी लॉन्गर। यहोवा इज़राइल का राजा था। पढ़िए, एक वचन और पढ़ लीजिए आप। होशे नबी की पुस्तक निकालिए जल्दी से। होशे नबी की पुस्तक, उसका 13 अध्याय, होशे 13th चैप्टर वर्स नंबर 10। होशे नबी की पुस्तक 13 अध्याय का 10 वचन। आई विल बी दाई किंग, वेयर इज एनी अदर दैट मे सेव दी इन द डे इन ऑल दाई सिटीज एंड दे एंड दाई जजेस ऑफ whom thou saidest give me a king and princess। प्रभु यहोवा कहता, मैं तुम्हारा राजा हूं। हालेलुया। बहुत सारे मसीह लोग यीशु मसीह को केवल मुक्तिदाता बनाते हैं कि हमारी मुक्ति का ही काम कर, लेकिन यीशु मसीह केवल मुक्तिदाता नहीं है। यीशु मसीह राजा है। वो आपके जीवन में रिजाइड करने नहीं आएगा। ही विल कम टू प्रिजाइड ओवर योर लाइफ। You are only inviting him to reside in your life. Invite him to preside over your life. वो राजा है, वो राजा था, वो राजा है, वो राजा रहेगा। He wants to rule your life. आपको अपनी रेंज उसके हाथ में देनी है। हालेलुया। तो सैमुएल का दिल टूटा कि इज़राइल यहोवा को राजा की गद्दी से इज़राइल ने उतारा। प्रभु ने कहा था, तुम राजा बनाओगे। वो राजा घोड़े रखेगा, तबेले बनाएगा, बहुत सारी रानियां रखेगा, वो सोना चांदी इकट्ठा करेगा, अपने महल बनाएगा, ऐशो आराम का जीवन गुजारेगा। तुम्हें टैक्स लगाएगा, तुम्हारे से टैक्स लेगा, तुम्हारे बच्चों को अपनी फौज में रखेगा और तुम्हारी औलाद को अपना गुलाम बना के रखेगा। कितना बढ़िया होता अगर इज़राइल का राजा यहोवा रहता। आपको मालूम है कि ज़बूर है, यहोवा राज करदा है, हुण लोग मनावन डर, ओ करूबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। गाइए मेरे साथ। यहोवा राज करदा है, हुण लोग मनावन डर, ओ करूबीम ते बैठा है, कंबे जमी थर थर। याकूब विच पूरा कीता तू सच्चाई ते निया, यहोवा रब साडे नू सब जानो आलीशान, सब जानो आलीशान, यहोवा रब साडे नू सब जानो आलीशान। यहोवा कहता है कि क्या तुम सोचते हो जो राजा तुम अपने ऊपर बनाओगे
उसके रथ और घोड़े और उसकी सेना, उसके सैनिकों की तलवार और ढालें और नेजा तुम्हें बचा लेगा दुश्मनों से। यहोवा कहता है क्या मेरे आर्सेनल कम है? मेरे पास लाइटनिंग बोल्ट हैं, मैं आकाश से बिजली भेजता हूं। यहोवा कहता है मैं अर्थक्वेक भेजता हूं और लोगों को मार देता हूं अर्थक्वेक भेज के। यहोवा कहता है मैं हैवी रेन्स भेजता हूं, मैं गड़े भेजता हूं। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं महामारियां भेजता हूं जो मैंने मिस्र में भेजी। यहोवा परमेश्वर कहता है मैं हरिकेन्स भेजता हूं, मैं सुनामियां भेजता हूं। ये यहोवा के हथियार हैं। मैं ब्रिमस्टोन भेजता हूं, मैं फायर भेजता हूं। एक छोटा सा ये वायरस है भाई और बहनों, ये मत सोचिए शैतान ने भेजा है। इतना बड़ा काम उसकी करने की जरूरत नहीं है, ये यहोवा की कंसेंट से आया है। पूरी दुनिया, पूरा वर्ल्ड इज कम टू ए स्क्रीचिंग हॉल्ट। देख रहे हैं आप? हालेलुया। परमिशन उसकी है। आप कहेंगे ग्लोबलिस्ट का काम है, डीप स्टेट का काम है, इल्यूमिनाटी का, फ्री मैसनरी का, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का, मैं मानता हूं, बट इट इज द वन हु इज सीटेड ऑन द लॉफ्टी थ्रोन। He is reigning and ruling. He is sovereign. Even though he has given the custody of the world, the 70 nations, into the hands of the watchers and made them chancellors and co-regents, nevertheless, he is reigning above all. He has all the kingdoms and dominions and powers and principalities under his feet. He is sovereign ruler, the king of the universe. Hallelujah. प्रभु कहता है मेरे पास आर्सेनल कम है जो मैं भेजूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप पढ़िए पहला राजा, दूसरा राजा, पहला सैमुएल, दूसरा सैमुएल, पहला क्रॉनिकल्स, दूसरा क्रॉनिकल्स, हिस्ट्री पढ़ें सारी। ये राजाओं की हिस्ट्री है, जजेस की और राजाओं की हिस्ट्री। ध्यान से पढ़िए इज़राइल की हिस्ट्री। ओल्ड टेस्टामेंट आपके अंदर घुसना चाहिए, पढ़ के देखें। मैं आपको बताना चाहता हूँ यहोवा परमेश्वर ने एक वचन देना चाहता हूँ आपको, बड़ा प्रोमिनेंट वचन है। लेविटिकस 25 में चलें। लेवी व्यवस्था, लेवी व्यवस्था उसका 25 अध्याय और उसका 23 वचन आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। लेवी व्यवस्था 25 का 23 पढ़ना चाहता हूँ। देखिए प्रभु क्या कहता है इज़राइल के लिए। द लैंड शैल नॉट बी सोल्ड फॉर एवर, द लैंड इज माइन, फॉर ye are strangers and sojourners with me। प्रभु कहता है इज़राइल की धरती मैंने तुम्हें दी है, लेकिन कोई इसे बेच नहीं सकता। मैं आपको कल परसों बताऊंगा जब जब इज़राइल की धरती को काटने बांटने का काम जिस देश ने किया, यहोवा परमेश्वर ने उनका कैसे बैंड बजाया। कौन कौन सी विपत्तियाँ, वो अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, यूरोपियन यूनियन हो, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन हो, कितनी बड़ी विपत्तियाँ और श्राप उनके ऊपर आए। अभी भी 2 स्टेट सोल्यूशन लाएगा शैतान इवेंचुअली। 2 स्टेट सोल्यूशन कि इज़राइल में से सामरिया और वेस्ट बैंक जो है वो इलाका फ़लस्तीनियन को दे दिया जाए। ये फ़लस्तीनियों का नहीं है, ये यहोवा की धरती है। यहोवा ने कहा इस लैंड को बेचना नहीं, ये लैंड मेरी है। आखिरी अध्याय पढ़िए गिनती की पुस्तक का। गिनती की पुस्तक का आखिरी अध्याय जब आप पढ़ेंगे उसके अंदर एक बड़ी खास बात है। पढ़िए नंबर्स की पुस्तक, गिनती की पुस्तक में आप पढ़िए 36 चैप्टर, इसका पूरा अध्याय पढ़िए। प्रभु ने ये तक कहा था कि कोई इस्राएली लड़की इज़राइल के गोत्रों को छोड़ के कहीं बाहर शादी नहीं करेगी। इज़राइल की लैंड किसी दामाद को नहीं दी जाएगी। अगर आप यशाया नबी की पुस्तक पढ़ेंगे, यहोवा परमेश्वर कहता है आई मैरिड द लैंड ऑफ इज़राइल। इज़राइल की धरती जो है लैंड, वाई यू कॉल इट होली लैंड, बिकॉज दिस लैंड इज़ द ब्राइड ऑफ याहवे। याहवे की दुल्हन है ये धरती। इस धरती से यहोवा ने शादी की है, इसलिए ये धरती क्या है, अति पवित्र धरती है इज़राइल की। हालेलुया। प्रभु यहोवा ने ये धरती दी, जितनी धरती दी है ना, इब्राहिम के साथ वादा किया है, जो लैंड ट्रीटी है वो उत्पत्ति की पुस्तक 15 अध्याय में है। पढ़िएगा 15 अध्याय जेनेसिस,
फिर किसी समय उस पर भी बात करेंगे। वो रॉयल लैंड ग्रांट है जो इब्राहिम को दी गई और इब्राहिम की वंश को दी यहोवा परमेश्वर ने। पर यहोवा परमेश्वर ने ये तक कहा कि कोई वुमन बाहर शादी नहीं करेगी, लैंड बाहर नहीं जाएगी। अगर अब देखिए, परमेश्वर ने एक बहुत अद्भुत बात इस्राएलियों को कही, उसके ऊपर भी हम एक दिन मनन करेंगे। परमेश्वर ने इस्राएलियों को जुबली मनाने के लिए कहा। जुबली आपने देखा होगा, पहले समय आता था जब फिल्में चलती थी तो बोलते थे सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली, डायमंड जुबली। ये जुबली वर्ड बाइबल में से निकाला लोगों ने। जुबली के लिए हिब्रू वर्ड है योवेल। जुबली का मतलब होता है 50। प्रभु ने ये कहा 6 साल पृथ्वी पे हल जोतना, 7वें साल पृथ्वी को विश्राम देना। फिर परमेश्वर ने कहा जब 7 सबतें पूरी हो जाएंगी ईयरली, 7 सबतें, 7 साल multiplied by 7, 49 years, and then the 50th year that shall come after 49 years, you shall proclaim jubilee. जुबली की घोषणा करना। प्रभु ने कहा 50वें वर्ष में जुबली की घोषणा करना। ये परमेश्वर ने एक बहुत पवित्र आदेश इस्राएलियों को दिया, और इस पवित्र आदेश के अंदर बहुत बड़ा भेद छिपा हुआ है, जिसके ऊपर कल सुबह हम मनन करेंगे, अभी टाइम ज़्यादा हो जाएगा। परमेश्वर ने कहा 50वां साल की डिक्लेयर करना। तुरी शोफार फूकेगा महायाजक और डिक्लेयर कर दिया जाएगा जब 50वां साल आएगा। तुरी फूकते, तुरी की आवाज़ सुनते क्या होगा? वो लिबर्टी का साल है, आज़ादी का साल है। आपको मालूम यीशु मसीह ने जुबली की डिक्लेरेशन की, कब की? जब प्रभु यीशु मसीह अपने नगर नासरत को आया, वो जुबली का साल था। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह नासरत में गया सिनेगॉग में, और उसे यशाया का स्क्रोल दिया गया, और उसने वहाँ से पढ़ा जहाँ से कभी पढ़ा नहीं जाता था। स्क्रोल का वो हिस्सा जूइश लोग नहीं पढ़ते थे। जीसस ने वो खोला और पढ़ा यशाया नबी की पुस्तक में से कि यहोवा का आत्मा मेरे ऊपर है, क्योंकि उसने मुझे मसा किया है ताकि मैं कंगालों को सुसमाचार सुनाऊं, ताकि मैं अंधों को बिनाई दूं, ताकि मैं जेल में पड़ों को आज़ाद कर दूं, ताकि मैं यहोवा की खुशी के साल का प्रचार करूं। यह जुबली है। महायाजक तुरी फूकता है और इसे प्रभु ने कहा ये पढ़ना, इसकी घोषणा करना। अगर इस्राएल में कोई परदेसी तुम्हारा गुलाम बन के रह रहा हो, तुरही की आवाज़ सुनते वो आज़ाद हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने किसी व्यक्ति को लोन दिया है, पैसा दिया है, और वो पैसा माफ़ हो जाएगा। अगर किसी ने कर्जा दिया, कर्जा माफ़ हो जाएगा। अगर किसी ने अपनी ज़मीन किसी को गिरवी रखी है, जो शोफार की ब्लास्ट होते ही वो ज़मीन वापस उस बंदे के पास चली जाएगी। जुबली का मतलब है हर चीज़ अपने रियल ओनर के पास चली जाएगी। अब इस्राएली करप्ट हुए, अब सुनिए कैसे हुए। वचन ये बताता है अगर किसी ने 49th ईयर में, जैसे मान लो ये 2020 है और 2021 में जुबली आ रही है, मान लो मैं 2020 में किसी जूइश बंदे से उधार लेने गया कि मुझे 5 लाख उधार दे दीजिए, मैं हर साल 1 लाख की किश्त अदा करूंगा। तो वो जूइश बंदा सोचेगा अरे नेक्स्ट ईयर तो जुबली है, ये तो मुझे 1 लाख ही वापस करेगा, तो मेरे 4 लाख मर जाएंगे, मैं नहीं दूंगा। प्रभु यहोवा कहता है तू ऐसा नहीं कर सकता, तुझे देना होगा। बेशक तेरे 4 लाख मर जाएं। अगर उसने तो लोग ट्रिकरी करते थे, डिसीट से काम करते थे, कनिंगनेस से काम करते थे। तो मान लो अगर किसी यहूदी ने, वो इस्सकर के कबीले में रहता है, मैं आपको, मेरे पास अभी साधन नहीं है, मैं मैप के ऊपर आपको टीचिंग दूंगा आने वाले समय में, स्लाइड बना के कंप्यूटर के द्वारा। इट विल बी, आई एम टेलिंग यू, इट विल बी सो एनरिचिंग। आपको इधर और इधर सब कुछ घुस जाएगा कलाम यहोवा का, ऐसे परमेश्वर सिखाएगा। मान लो कोई इस्साकर के इलाके में, इस्साकर के कबीले में है, और उसने मान लो गाद में और अशर में ज़मीन खरीद ली है। उसने ज़मीन खरीदी है 48 ईयर में, उसकी ज़मीन की रजिस्ट्री हो गई। अब जुबली आई, जुबली में तुरी फूकी गई, शोफार फूका गया। वो जो ज़मीन बंदे ने 2 साल पहले खरीदी है, पैसा पूरा दिया, रजिस्ट्री हो गई है, वो वापस पहले ओनर के पास लौट जाएगी। प्रभु ने कहा 50वें साल में हर गुलाम आज़ाद हो जाएगा, हर कर्जा माफ़ हो जाएगा, हर चीज़ अपने रियल ओनर के पास चली जाएगी। प्रभु ने ये क्यों दी जुबली इसराइलियों को? प्रभु ने दी ताकि इसराइलियों का मटेरियल चीज़ों से प्रेम ना रहे, ताकि इसराइलियों के अंदर ग्रीड, समझते हैं आप, एक और ले लिया घर वुल्वरहैम्पटन में, एक कावेंट्री में ले लें, एक ऑक्सफोर्ड में ले लिया जाए, एक इल्फर्ड में ले लिया जाए,
ग्रीड हैज नो एंड फॉर मटेरियल थिंग्स। समझते हैं आप? परमेश्वर अपने लोगों के अंदर ग्रीड को कंट्रोल करना चाहता था कि मेरे लोगों में ग्रीड ना हो, लालची ना हो मेरे लोग। तो 50वें साल में हर चीज ओरिजिनल ऑनर के पास चली जाती है। अब आपको मालूम इसराइलियों ने क्या किया? वो करप्ट थे। इसराइलियों ने जुबलियां नहीं मनाई। दे नेवर सेलिब्रेटेड जुबली, क्योंकि वो गुलामों को गुलाम बना के रखना चाहते थे, किसी का कर्जा माफ़ नहीं करना चाहते थे, अपनी रियल एस्टेट खोना नहीं चाहते थे। लेकिन यहोवा का तो ये ज़बरदस्त नियम है, अगर तू आज़ाद करता यहोवा तुझे 100 गुना वापस करता। पर इसराइल ने ऐसा नहीं किया। वो आपको मालूम वो गुलामी में क्यों गए? 70 साल की असीरी में क्यों गए? क्यों गए मालूम आपको? 10 जुबली नहीं मनाई उन्होंने। 500 साल 50 × 10 500 ईयर्स की जुबली नहीं मनाई। 50 साल 10 जुबली नहीं ऑनर की। यहोवा ने 7 गुना, लेविटिकस 26 अध्याय में लिखा मैं 7 गुना सजा दूंगा। परमेश्वर यहोवा ने उन्होंने 10 जुबली नहीं मनाई, यहोवा ने 10 गुना 7 करके उन्हें गुलामी में भेजा। आज भी मसीह लोग गुलामी में जाते हैं। आपकी ब्लेसिंग रुकी है, आपकी बॉडी के अंदर डिजीज़ है, सिकनेस है, आपके बच्चे वेवर्ड हो गए हैं, आपका कोई काम सफल नहीं हो रहा, आप धन इकट्ठा कर रहे हो, बहुत बहुत इकट्ठा किया है, लेकिन सेहत नहीं, एंजॉय नहीं कर सकते। क्या फ़ायदा धन का? आप खा नहीं सकते, कुछ पी नहीं सकते, आप कोई एंजॉय नहीं कर सकते उस लाइफ को। ग्रीड, कैपिटलिज्म, इकट्ठा करना, और आज है थोड़ा और आज। यीशु मसीह कहते हैं एक व्यक्ति से, तेरा प्राण आज तुझसे ले लिया जाएगा मूर्ख। वो कहता है और मैं और बड़े बड़े गोडाउन बनाऊंगा, और धन इकट्ठा करूंगा, और इकट्ठा करूंगा। कोई अंत नहीं है इसका। इस ग्रीड को यहोवा मारना चाहता था। इसराइली इस ग्रीड के कारण गुलामी में गए, 70 साल की गुलामी में गए, क्योंकि उन्होंने जुबली को ऑनर नहीं किया। आप लोग क्या गरीबों की, अनाथों की, विधवा लोगों की सुधि लेते हो? बाइबल में लिखा, भाई और बहनों, पढ़ के देखो। प्रभु कहता है एक साल में समय आएगा जब 1/10 गरीबों को, अनाथों को और विधवाओं को देना है। ये बाइबल में लिखा है, पढ़ा नहीं आपने कभी शायद, ना ही ज़्यादा पास्टर लोग ये बताएंगे। गरीब, अनाथ, विधवा, लाचारों की सुधि लेना है। एक्यूमुलेट नहीं करते जाना है। ग्रीड जो है ना, ग्रीड, डोंट वेंट योर ग्रीड, इट विल बी फ्लेयर्ड अप एंड देयर विल बी नो एंड। और आपको प्रॉस्पेरिटी कल्ट वाले प्रीचर आके आपकी ग्रीड के फायर में फ्यूल डालेंगे। बड़ा अमीन और बड़ी बरकत। ये कलाम है खुदा का। वो कहता है हर चीज अपने ऑनर के पास लौट जाएगी। अब देखिए प्रभु क्या कहता है, 50 साल के बाद स्क्वायर 1 में आ जाएंगे आप फिर से शुरू करेंगे, यहोवा फिर आपको फलवंत करेगा। फिर से शुरू करेंगे, यहोवा फिर आपको एस्ट्रोनॉमिकल इंक्रीज देगा यहोवा। क्यों आप इकट्ठा करके रखते हो, स्टोर करके रखते हो? हैप्पी बैंक बैलेंस चाहिए, बहुत सारे बंगले, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारी रियल एस्टेट चाहिए, क्योंकि आप उसके अंदर अपनी सिक्योरिटी ढूंढते हो। एक फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है आपको। पेंडेमिक आएंगे भाई और बहनों, आपको खाने को ही नहीं मिलेगा कुछ। क्या कर लोगे पैसे से? क्विट ग्रीड। ग्रीडी पीपल विल नेवर इनहेरिट द किंगडम। देखिए प्रेरित पौलुस क्या कहता है। 1 कुरिन्थियों की पत्री जल्दी से निकालिए। 1 कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 7 वचन आपके लिए पढ़ता हूँ। सुने, मैं 6 से पढ़ता हूँ। हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपुल्लोस की चर्चा दृष्टांत की रीति की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा ये सीखो कि लिखे हुए से आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना, क्योंकि तुझमें से और दूसरे में कौन भेद करता है? और तेरे पास क्या है जो तूने दूसरे से नहीं पाया? और जबकि तूने दूसरे से पाया है तो ऐसा घमंड क्यों करता है मानो कि नहीं पाया? दूसरे से का मतलब है, ओरिजिनल टेक्स्ट में लिखा है, व्हाट इज दैट यू डिड नॉट रिसीव फ्रॉम गॉड।
वो क्या है तेरे पास जो तुझे यहोवा से नहीं मिला है? तो क्यों उससे लगाव करता है? क्यों ग्रीड को अपने अंदर बिल्ड करता है? तो इजरायलियों का सबसे बड़ा अधर्म ये था कि उन्होंने यहोवा की जुबलीस को नहीं माना और वो असीरी में जाते रहे ग्रीड के कारण। हालेलुया। और आपको मालूम कितनी बड़ी उनके ऊपर सजा आई? 2600 ईयर्स की गुलामी में चले गए। 70 गुना 7 प्रभु ने कर दिया, 490 साल। फिर प्रभु ने उसको 7 से मल्टीप्लाई कर दिया। 2 बार लिखा है लेवी व्यवस्था 26 अध्याय में, 7 गुना 7 गुना। आई विल पनिश यू 7 टाइम्स, इफ यू स्टिल वॉन्ट हर्कन अनटू मी आई विल पनिश यू अनदर 7 टाइम्स। तो जो एजरा, जरूब्बाबिल और नेहमाया के साथ लोग लौटे, वो बहुत थोड़े से लोग थे जिन्होंने सेकंड टेम्पल बिल्ड किया। जो ऊपर के 10 गोत्र थे जिन्होंने बहुत संगीन अपराध किया यहोवा के खिलाफ, वो तितर बितर हो गए। हालेलुया। संसार के अंदर तितर बितर हो गए। हालेलुया। और आपको मालूम इज़िकियल नबी 37 अध्याय के 16 वचन में 2 लकड़ियों को इकट्ठा करता है यहोवा, 2 स्टिक्स को इकट्ठा करता है कि मैं 2 लकड़ियों को फिर जोड़ूंगा। और इज़िकियल दर्शन देखता है, यहोवा उसको लेके जाता है, एक वैली है जिसके अंदर ड्राई बोन्स हैं। तो यहोवा परमेश्वर पूछता है, मनुष्य के पुत्र क्या ये हड्डियाँ जी सकती हैं? तो इज़िकियल बहुत सही जवाब देता है, कहता प्रभु तुम जानते हो, आप जानते हो प्रभु। तो प्रभु का रूह कहता है भविष्यवाणी कर। प्रोफेसी हड्डियों के अंदर जान डालती है, रियल प्रोफेसी। और वो यहोवा के आत्मा के द्वारा नबूवत करने लगा। हड्डियां हड्डियों के साथ जुड़ गईं। किसी की स्कल इधर पड़ी थी और जो बोन की हड्डी थी 4 मील दूर पड़ी थी शायद। थाई बोन, फीमर कहीं और पड़ी हुई थी। हर एक हड्डी अपने अपने साथ आ गई। डीएनए ने अपने अपने डीएनए को तलाशा। स्केलेटन खड़ा हुआ, वो भविष्यवाणी फिर की, उसके ऊपर नसें, नाड़ियाँ, मांस चढ़ने लगा, ऑर्गन बनने लगे और एक जिंदा आर्मी उसके आगे खड़ी हो गई। यहोवा परमेश्वर ने बताया कि ये हड्डियों की तरह पूरी दुनिया में तितर बितर सूख चुके हैं, इनका विनाश हो चुका है, लेकिन मैं अपना रूह भेजूंगा। हालेलुया। और इन्हें वापस लाऊंगा। 722 BC में असीरियन की गुलामी में गए वो लोग, और उसके बाद मीड्स एंड पर्शियंस ने उनको हरा दिया। 732 में वो आगे उनके गुलाम हो गए। और फिर हम देखते हैं 586 BC में यहूदा गुलामी में चला गया। कौन चला गया? पूरे का पूरा यहूदा भी गुलामी में चला गया। अब आपको मालूम इज़राइल के 2 किंगडम थी, नॉर्दर्न किंगडम, सदर्न किंगडम। दोनों के 20-20 राजा हुए हैं, रफली 20 या 21 और 20, 40-41 के करीब राजा हुए हैं। आपको मालूम इनमें से धर्मी राजा कितने थे? 40-42 राजों में से कितने धर्मी थे मालूम आपको? सिर्फ 3। कुछ सेमी धर्मी थे, आधे प्रभु के संग चले फिर नहीं चले, लेकिन 3 राजा सही थे। एक दाऊद, दूसरा हिजकिय्याह, तीसरा जोसाया। 3 राजा इज़राइल, यहूदा इज़राइल के 3 मिला के राजा यहोवा के संग चले। बाकी के जो राजा थे 98% राजा भ्रष्ट निकले और इस्राएली प्रजा को यहोवा से दूर किया उन्होंने। हालेलुया। कल सुबह 10 o'clock किसी स्टडी को हम कंटिन्यू करेंगे। प्लीज़ ज्वाइन मी 10 o'clock टुमारो मॉर्निंग। वी आर गोइंग टू बी ऑन अ वेरी वेरी एक्साइटिंग जर्नी। हम इज़राइल के भेद और रहस्य को समझेंगे परमेश्वर के जिंदा कलाम में से। आई विल सी यू टुमारो मॉर्निंग 10। हालेलुया। प्रभु आप सबको आशीष दे। अगर आप में से किसी के दिल में प्रभु का आत्मा काम करे, एंड इफ़ द लॉर्ड वुड स्पीक टू यू टू सो, प्लीज़ लेट मी नो। आई लेट यू नो हाउ यू कैन सो द ऑफरिंग फॉर द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। कल 10 बजे फिर मिलते हैं। सबको जय मसीह की।